till we put out our opinion poll, Akhilesh was very happy and Samajwadi Party was delighted with all opinion polls. In fact, they welcomed more and more opinion polls. They would go smiling. Moment our studied, sample-based, detailed projections for UP went out, the Samajwadi Party has gone to the Election Commission and said, the EC must block opinion polls. Why? Why were they okay till our poll came out? Or is it with the projections that Republic has put out? I'd like to know. Let's debate. 1 week ago, Republic brought to you the most accurate, analysed and methodical opinion poll. Samajwadi Party plus 2%, BJP minus 2%. So the BJP loses 2%, Samajwadi gains 2%. So even if that were to happen, which means if there were to be a swing further for Samajwadi and against BJP, even then the BJP returns with 235 to 255. Most parties welcomed it. आपका जो ओपिनियन पोल है, मैं ऐसा मानता हूं कि अभी चुनाव आते आते ये काफी ज्यादा अंतर हो जाएगा. I agree with your survey to the extent that this is what all of them are working towards. They are working towards a hung assembly. But I assure you, this time around, the Punjabis have seen through their machinations. And I feel, personally, sitting on the ground, that it's going to be a one-way thing. We are going to get a clear majority. Some parties questioned it. Your projection do not show us in very favorable light. But I would like to emphasize that Trinamool Congress actually, within a matter of less than 5 months, we have been able to galvanize the Goan society. The SP didn't agree with it. रिपब्लिक का सर्वे आया है तो इंटू 2 कर दो, तो कितनी हो गई सीटें बताओ? नहीं, अगर इंटू 2 किया, कितनी दी हमारी? तो लगता है इंटू 3 करना पड़ेगा. Samajwadi Party has called for an immediate ban on opinion polls. Senior Samajwadi Party leader Naresh Uttam Patel has written a letter to the Election Commission seeking for an immediate ban on opinion polls. Republic Media Network's opinion poll has certainly led to some panic among political parties seeking for a ban on opinion polls. While all other polls tried to claim that the BJP would get about 242 seats, it was only Republic TV and PMark who used random stratified sampling using predominantly 3 techniques to predict that the BJP could get anywhere between 252 to 272 seats. Pollsters are questioning how democratic and legitimate surveys can be banned. People who say that opinion polls influence elections, so many pre-poll and post-poll studies have happened for various elections. None of them said opinion poll was a factor for a person to vote for a particular party or candidate. And take the example of last UP election or Punjab election. None of them said that BJP is going to form an absolute majority. So to say the fact that opinion polls affect and influence voters would be a great disservice to the wisdom of the voters. And the BJP says this is just the start of the Samajwadi Party's blame game. समाजवादी पार्टी अपने संभावित हार को देख करके बौखलाहट में आ गई है और इसीलिए कभी इलेक्शन सर्वे पर रोक लगाने की मांग करती है, कभी निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है और कभी डिजिटल माध्यमों में अपनी कमजोरी का रोना रोती है. It is the democratic right to report on public opinion and surveys that reflect the mood of the nation. Republic will fight back the attempt to censor our opinion poll. We have Animesh Pandey, founder of PMark, with us. He's done our poll. Anurag Bhadoria, national spokesperson of the Samajwadi Party. Ramnik stays with us. Sanju is with us. Vikraman of the VCK joins us. Mr. Bhadoria, how come there is suddenly a problem you have with the polls? Till 2 weeks back, when you had the polls saying that a Samajwadi Party will do well, will get 160 seats, some said 170 seats. Okay, Mr. Bhadoria, I'm told, is not connected till then. Vikraman, it looks like sour grapes. Can you hear me, Vikraman? I can't hear you. Can't hear you.
hear you. Yeah. Go on. What do you think about this Samajwadi Party going and saying stop all opinion polls? I mean, sudden, no? All very suddenly. They were happy till last week. First of all, these opinion polls do not make any sense because they don't reflect the reality in any sense. You might claim that it has worked in the past, but it doesn't necessarily can work every time. Okay, they don't make any sense is your point. I'd get Anurag Bhadodia. Mr. Bhadodia. Mr. Bhadodia, can you hear me now? जी Bhadodia जी, अचानक opinion polls Yeah. के साथ इतनी परहेज सुनो मैं क्यों, इतना प्रॉब्लम क्यों? What is your problem suddenly with the opinion polls? अभी तक रिसेंटली तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था, एक महीने पहले तक आप काफी देखिए, खुश थे ओपिनियंस पोल्स को लेकर, तो जब 160 170 दिखा रहे थे आपके लिए, मगर जब अभी 100 110 की बात हो रही है तो अचानक आप इलेक्शन कमीशन को लिख के बोल रहे हैं कि ओपिनियन पोल्स बंद कराइए, ऐसा क्यों? देखिए, शायद आप भूल रहे हैं, अभी भी आपके यहाँ पे 150 160 अभी भी बहुत सारे चैनल दिखा रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि जिस तरह से ओपिनियन पोल किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, सारे दिन ओपिनियन पोल चल रहा है, ऐसा लगता है प्रचार चल रहा हो, कभी इस जात के इतने, इस जात के इतने, इस जात के इतने, इस जात के इतने। हाथ तो तब हो गई जब एक चैनल पे मैंने देखा, एक जगह लगा था हिंदू इतने, मुस्लिम इतने, जाट इतने। अब जाट को हिंदू नहीं समझते क्या? मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज सकता हूं। माने इस तरह का अगर ओपिनियन पोल होगा तो आप इसके मतलब आप प्रचार कर रहे हैं कि ओपिनियन पोल कर रहे हैं? भाई आप मुझे दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। 39% आप बीजेपी को दे रहे हो, 36% आप मुझे भी दे रहे हो। ऐसा नहीं कि बहुत पीछे मुझे दिखाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह का ओपिनियन पोल दिया जा रहा है, माने ये कास्ट सिस्टम की वजह से, तो मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कम से कम टीवी चैनल पे ये इतना बड़ा जातियों के बारे में, धर्म के बारे में, ये देखिए यादव, ये देखिए मुस्लिम, ये देखिए कुर्मी, ये देखिए पंडित, ये देखिए ठाकुर, ये देखिए फलाना, क्यों भाई? एक मिनट संजू, जस्ट वेट अ मिनट संजू, वेट अ मिनट संजू, वेट मुस्लिम है, संजू, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। देखिए अनुराग जी, ये कुछ कह रहे हैं, कुछ करते हैं। आप तो दिन भर, आप हमें कह रहे हैं, आप तो दिन भर जाति की पॉलिटिक्स करते हैं। ये कौन दलित है, कौन नन दलित है, कौन क्षत्रिय है, कौन किस कास्ट है। एक मिनट, बात मेरी बहुत, आपसे मैं सीधी बात करना चाहता हूं। 41.3% वोट हमने, रिपब्लिक ने बीजेपी को दिखाया। आपके लिए जो मुझे याद नहीं है, करीब 33% शायद था। अनिमेश, एम आई राइट? अनिमेश, अराउंड 33%। तो जब आप, मेरा ये कहना है कि जब आपने देखा कि रिपब्लिक का पोल गैप जो दिखा रहा है, जो हमने दिखा कि 250 से लेके 270, यानी कि 252 से लेके 272, 272 तक सीटें आ सकती है, और अगर 3-4% स्विंग आ जाए तो 290 पार कर सकती है बीजेपी। जब आपने ये पोल देखा उसके बाद आप गए, आप उसके पहले नहीं गए। ये पोल देखने के बाद आप तुरंत नहीं, देखिए उसके बाद क्यों गए? मैं बात कर लूं जी? अच्छा, अब मैं बात कर लूं। बात आपकी नहीं है, ये समस्या है हर आदमी के। आपके मन में चोर क्यों है कि मैं आपके पोल देख के गया? अरे मैं तो बता रहा हूं कि कुछ चैनल का नाम आपके चैनल पर लूं क्या? मैं लेना नहीं चाहता हूं। वो 39 बीजेपी को दे रहे हैं, 36 या कितने 36.5 हमें दे रहे हैं। ज्यादातर चैनल 140 से 45-50 सीट हमें भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर आप रिपब्लिक के पोल के बाद आप इलेक्शन कमीशन क्यों गए? समाज के लिए अच्छा नहीं है। फिर आप मेरी बात से, अब आप बोलोगे मैं अगर पहले चला जाता तो आप बोलते रिपब्लिक के पोल के पहले क्यों चले गए? अब मैं बाद में चला गया तो रिपब्लिक के पोल के बाद में क्या ये सच नहीं है? अर्नब जी, ये बातों का कोई मतलब नहीं है। क्या ये अनुराग जी, इसके बाद क्यों गए, उसके बाद क्यों गए? अनुराग जी देखिए, पहली बात तो ये है, मैं पहले बीजेपी के संजू वर्मा कुछ कहना चाहती है आपको, आफ्टर दैट मैं अनिमेश पांडे को लाऊंगा। और मुझे लगता है आप लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, अगर करते हैं तो फिर ओपिनियन पोल्स को बंद कराने या फिर इलेक्शन में कमीशन पे जाके वहां पे अपनी मनमानी से दबाव डाल के रोकने की कोशिश मत कीजिए। और मैं तो हर दिन ओपिनियन पोल करूंगा, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। मेरा अधिकार आप मेरे से छीन नहीं सकते। आपको जी बिल्कुल, आपका मैं कुछ कहना चाहती हूँ। नहीं, आपका अधिकार आपसे छीन नहीं सकते। तो आपका अधिकार ये भी है, आपका अधिकार ये भी है। मैं बोल लूं। आपका अधिकार ये भी है कि समाज के अंदर में महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, किसान के रोंदने वालों को भी आप हटवाइए ना।
आप चलाइए सुबह से लेकर शाम तक कि देश का गृह राज्य मंत्री का बेटे ने जो रौंदा है वो क्यों देश का गृह राज्य मंत्री है। आप हटवाइए, आप बताइए माफिया या जेल के बाहर क्यों है, माफिया जेल के बाहर क्यों खेल रहे हैं। आप ये भी चलाइए दिन रात, आप चलाइए कि हाथरस की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ, दलित बेटी को रात के अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार हो गया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आज तक क्यों बैठा है। आप ये भी चलाइए उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हुआ और लगातार चिन्मय स्वामी अभी तक बाहर क्यों है, उनके महिला ने आरोप लगाया था। आप ये भी चलाइए कि किस तरह से यहाँ पे मनीष गुप्ता की हत्या हुई, किस तरह से यहाँ विवेक तिवारी की हत्या हुई, ये भी चलाइए। आप ये भी चलाइए कि कोविड काल में लाशों को कैसे जानवर यहाँ नोच रहे थे, नाकामी कौन सी सरकार की नाकामी की वजह से लोगों की यहाँ मौतें हुई। आप ये भी चलाइए कि ये भी चलाइए आप कि हेल्थ व्यवस्था में उत्तर प्रदेश सबसे फिसड्डी है। स्विच आप मुझे लगता है उत्तर प्रदेश आप मुझे लगता है बहुत टेंशन में। Sir, Bhadoria Sahib is going on like a two-tower radio. He does not know when to stop. Sanju is back. 1 minute. Let her complete. Let her complete. She walked out. She's come back. Yeah, Sanju. शांत हो जाइए दोनों तरफ प्लीज। मैंने तो सिर्फ पोल दिखाया, इतना टेंशन क्यों हो गया? सिर्फ पोल दिखाया। अच्छा संजू वर्मा को टेंशन है, मुझे नहीं है। एक मिनट भदौरिया जी, संजू वर्मा की बात सुन लीजिए पहले। वो जवाब दे रही है आपको, आनव जी एक मिनट मिस्टर भदौरिया, मैं आपके साथ अभी मैं आपसे डिबेट नहीं कर रहा। अभी संजू वर्मा आपसे डिबेट करना चाहती है, सुन लीजिए आप, नहीं तो वो फिर चली गई, मैं क्या करूं। आप रुक जाइए ना 2 मिनट, आप बैठ जाइए। संजू वर्मा, यू सिट डाउन। संजू, यू कांट कीप गेटिंग अप लाइक दिस। यू सिट डाउन संजू, यू सिट डाउन प्लीज, फॉलो, डोंट मेक इट डिफिकल्ट। 1 मिनट अनुराग भदौरिया का प्रॉब्लम ये हो रहा है। 1 मिनट संजू वेट अ मिनट अनुराग आप ब्रेक लगाइए, मैं अब 30 सेकंड का रूल इंप्लीमेंट करूंगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं बोलेंगे और सिर्फ मैं बोलूंगा और जिनको मैं अनुमति देता हूं वो बोलेंगे। अनुराग भदौरिया 2 मिनट रुक जाइए। आपके औपचारिक तौर से बीजेपी आपको रिस्पॉन्ड कर रही है। 2 सेकंड दे दीजिए ना, सिर्फ 2 सेकंड। 2 सेकंड, 1 2 खत्म। नहीं 2 सेकंड दे दीजिए ना, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं चाहिए, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जो व्यक्ति डिबेट छोड़ के भाग रहा हो वो इलेक्शन क्या लड़ेगा। बस अच्छा, थैंक यू अनुराग, थैंक यू। अभी आप सुनिए, अभी आप सुनिए 2 मिनट। या Or not, I need complete 2 minutes because I have been listening to this man gibberish for the last 6 minutes. And if he interrupts me again and Arnab Goswami is not moderating, I'm leaving the debate. I can't hear you clearly. Yeah, go on. You can't hear me, then you please get your technicity sorted out. That's my problem, that you can't hear me. Everybody else can hear me on every other debate. You're getting good. You don't have to get so worked up. Please. I know that you are very excited to have cool like Anurag Bhadoria on your debate. Either allow me to keep or I stop out. ये देखिए बेशर्मों की तरह हंस रहे हैं। इनका काम है हरा कुर्ता हंसना गुनाह है क्या? हर डिबेट में बेशर्मी दिखाना, बस बेशर्मी के अलावा कुछ आता नहीं है इनको। और फाइन, लेट हिम लाफ, आई विल नॉट। बोलिए। आपकी बेशर्मी खत्म हो गई हो तो मैं अभी बात करना शुरू करती हूँ। अपनी बेशर्मी अभी अपने रखिए, ठीक है? मैंने कुछ बोला क्या? मैं तो चुपचाप हंस रहा हूँ भाई। हंसना लोकतंत्र में हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। अर्नब जी से पूछो, हंसना तो अच्छी बात है। अच्छा, नाउ अनुराग जी आप जरा 2 मिनट प्लीज। आप अभी इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है ना, टाइम इज वेस्टेड। सीरियस इशू और डिबेट प्लीज। थैंक यू। Arnab, first and foremost, I want to remind Anurag Bhadoria and his last wale Akhilesh Yadav. There's a famous statement by the late Arun Jaitley on the floor of the parliament. Because in 2012 he was asked, that time if you remember, the Congress wanted to put a ban on all forms of social media and the Samaj Party had supported them then. Arun Jaitley said, it will start with a ban on opinion polls, ban on exit polls, and then finally it will be a ban on political commentators. It will be a ban on the freedom of the press. It will be a ban on free speech. So I will just quote what Mr. Jaitley said. Do opinion polls flout the Representation of People's Act? No.
Do opinion polls flout Article 19(1)(a? No. Do opinion polls flout Article 92? No. Unless there is a threat to sovereignty, integrity, public order, morality, and health, opinion polls cannot, and opinion polls should not be stopped. And लाल टोपी वालों को जो इतनी घबराहट हो रही है ना, अनुराग भदौरिया जी, आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, ये 10 मार्च को गायब हो जाएगी। जो राम को लेकर आए थे, जनता उनको लेकर आएगी। काशी और अयोध्या तो चालू हो चुका है, मथुरा भी बनवाएंगे और भगवा वापस लहराएंगे। और आपके लाल टोपी वालों को जनता ने धक्के मार के निकाला था 2017 में, 2022 में भी लाल टोपी वालों को धक्के मार के निकाला जाएगा। आपके चेहरे की मुस्कुराहट जो है ना, वो गायब हो जाएगी। अभी जब मौका है बस लीजिए, अब जब मौका है बस लीजिए। अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। नाहिद हसन जैसे लोगों को टिकट देते हो, जज करो। नाहिद हसन जैसे लोगों को आप टिकट देते हो, जवाब दे दो, जिन्होंने हिंदुओं का नरसंहार किया था। अरे भाई जवाब दीजिए। Okay, Sanju, now he heard you, and now we are opening up to a response now on all sides. 6 on the screen. Thank you. Anurag Bhadoria is responding, and then after that, Ramneek and Animesh also have to come in. And by the way, very quietly listening on, smiling is Major Malhotra of the Aam Aadmi Party. जी, ओपिनियन पोल से प्रॉब्लम क्या, आप बताइए। इधर हमारे ओपिनियन पोलस्टर बैठे हुए हैं, अनिमेश पांडे, बहुत अच्छा पोल किया इन्होंने। मैं बोलूं, हर सैंपल को देखा है। और आपको यह भी बता दूं, जो आप कास्ट के बारे में बोल रहे हैं, ये क्यों किया जाता है, ताकि सैंपल में जो होता है ना, हर कास्ट, हर रिलीजन, जेंडर बैलेंस, सब कुछ मेंटेन किया जाता है, ताकि आप जैसे लोग बाद में आके ना बोले कि आपका जो सैंपल है वो सैंपल गलत है। ये सैंपलिंग की बात होती है। अनुराग जी, आपको अनिमेश जी, आप जरा बता दीजिए अनुराग जी को। Animesh, you can tell Anurag about how scientific the poll is. पार्टी को गुंडों, माफियों और दंगाइयों से फुर्सत नहीं है। Okay, Animesh, you tell him. Animesh, you tell him. See, in terms of sampling, I mean, we have made earnest effort to reach out to all sections, all caste groups, and because caste is a major factor for political parties, defections have happened and caste has been flouted to show that such caste leader is joining. That's why to show that it's an accurate representation of the sample, we take those issues. And in our opinion poll, SP is polling 33.1%, which is much more than what they've got in recent 4-5 elections, whether Assembly or Lok Sabha. So, I mean, their anger against opinion poll seems misguided. No. And what are the other methods to... No, the question is, a simple question right now is what Anurag must think. Anurag ji, अगर आपको कोई 41% वोट देता, आप बताइए, इधर मेजर मल्होत्रा है आम आदमी पार्टी के, क्या आप मना करते? क्या आप जाते इलेक्शन कमीशन के पास? अगर आपको कोई 270-280 सीट दिखाता, आप बिल्कुल नहीं जाते। नहीं, मैं जानना चाहता हूं, देखिए, मैं जानना चाहता हूं कि नहीं, दूसरी एक पार्टी भी है जो बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई है, उनकी बात सुनिए। आप बताइए मल्होत्रा जी, आप क्यों नहीं जा रहे? आपके पार्टी को भी प्रॉब्लम्स थे। हमने जो प्रेडिक्शन किया था गोवा में, आपके पार्टी को बहुत प्रॉब्लम था उसके साथ, मगर आप क्यों नहीं जा रहे? देखिए Arnab, my humble request is that people should not make any communal remarks on this national show. My humble request is. And secondly, it is my personal opinion that the opinion polls should contribute positively to the nation and to the society. उस चीज को देखते हुए अगर सरकार की नीतियों को सुधारने और उनको नई दिशा देने की जरूरत है, तो पहले 4.5 साल तक, ये मेरा निजी मत है, it is my personal opinion, that opinion polls should be allowed for first 4.5 years of a government. After that, opinion polls should not be allowed because the stakes go very high, vested interests come in, and this has the effect of influencing the electorate. No, but no. There are set rules there. Arnab, may I? There are set rules there. Ramneek responding to Ramneek. Thank you. Arnab, I am surprised that Major Malhotra says a party spokesperson who took the support of Congress party on the basis of public opinion. They declared Bhagwant Mann as their chief ministerial face on the public opinion.
Why are you so adverse to public opinion? By number one, number two, Bhadoria Saab was crying about caste fragments and differences. Bhadoria also. Bhadoria in the middle. Well, sir, thank you. Major Malhotra sir, please don't interject, sir. Thank you. Bhadoria Saab was crying about the caste. अरे अभी थोड़े दिन पहले अखिलेश यादव was crying on a private channel. अरे मैं यादव हूँ इसलिए क्या? Every time you play your caste card, you know, all his life Mulayam Singh Yadav साहब had played MY card, Muslim Yadav card. Now you are saying कि जी caste faction के ऊपर नहीं होना चाहिए. It's a reality. And opinion polls are the opinion of the public, the electorate of this country. And if they are giving answers to pertinent questions, आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए भदौरिया साहब. माफ करना, अगर कोई ये पूछे कि बाबा जी को वोट देंगे या टॉपी चोर को, तब तो आपको प्रॉब्लम होना चाहिए. आपको क्यों प्रॉब्लम है? अगर पूछ रहे हैं कि आप समाजवादी के साथ जाएंगे, भाजपा के साथ जाएंगे, बसपा के साथ जाएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे, अरे किसी का निजी ओपिनियन है, वो अपना निजी ओपिनियन व्यक्त कर रहा है. आप एकदम जो है ना टर करके AK-47 की तरह छोड़ देते हैं, उसके बाद आप रुकने का नाम नहीं लेते. आप दूसरों की बात को सुनिए. पब्लिक ओपिनियन हमारे प्रजातंत्र का एक हिस्सा है. पब्लिक ओपिनियन लेने में कोई इसके देयर आर प्रोफेशनल्स. अरे ये लोग सब प्रोफेशनल हैं, चाहे वो अर्नब के चैनल पे हो, चाहे वो किसी और चैनल पे, लोग सब प्रोफेशनल्स हैं. जब तक आपका नैरेटिव शूट होता है, जब तक आपकी बात कही जाती है, जब तक आपको लगता है कि ये हमारे पक्ष में है, तब तक तो कहते हैं कि साहब बिल्कुल बढ़िया है, चलने दीजिए, ठीक है. जहां कहीं आपको लगता है कि आपकी अपेक्षा से कम संख्या आपको दिख रही है, चाहे वो भदौरिया रिस्पॉन्स, चाहे वो ट्रांसलेशन भदौरिया की रिस्पॉन्स बात हो, तब आपको पीड़ा होती है. भदौरिया रिस्पॉन्स, अनुराग भदौरिया रिस्पॉन्स. वेट संजू, अनुराग भदौरिया रिस्पॉन्स. पूछे थे सैंपल साइज क्या था, एज ग्रुप क्या था, जेंडर क्या था, क्वेश्चंस क्या थे. अरे हो गया, मैं जवाब दे रहा हूं. इन चीजों के ऊपर अगर आप भाषण हो गया, पैमाना सेट किया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बोले, बहुत बढ़िया. ताली पीट दी. अब चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ. मैंने ताली पीट दी, बहुत अच्छा बोला. आप चुप हो जाओ. अरे ताली पीट दी भाई, बहुत अच्छा बोला. आप चुप हो जाओ. अरे ताली पीट दी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. वाह 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 वाह. आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ. देखिए आप चुप हो जाओ. मुझे बोलने दो, आप मुझे बोलने दो भाई, आप बोलने दो. कहाँ है वो यार? अरे समय कम है, हो गया, मुझे बोलने दो. हो गया, बधाई हो गई, हो गई बधाई, हो गया. आपका काम हो गया आज का, हो गया, हो गया. आपका काम आज का हो गया. कल फिर बुलाया जाएगा, कल आपको फिर बुलाया जाएगा. अब कल बोलिएगा. अरे कल फिर आपको 9 बजे वाला शो, 10 बजे वाले शो में बुलवाएंगे सब लोग. बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, मुझे बोलने दीजिए. हो गया, आपका काम हो गया. अनुराग भदौरिया इज रिस्पॉन्डिंग. रमनीक थैंक यू, रमनीक थैंक यू. अनुराग इज रिस्पॉन्डिंग. देखिए, इन्होंने बोला आपका MY फैक्टर. अरे भैया, मेरा महिला यूथ फैक्टर है जो आपके समझ के पड़े है, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपकी समझ में क्या आता है. AK-47 जो अभी आप बोल रहे थे, मैंने AK-47 नहीं बोला. आपको AK-47 समझ में आता है, आपको महिला यूथ समझ में नहीं आती है, आपको उत्तर प्रदेश की और देश की संस्कृति संस्कार समझ में नहीं आते हैं. हम समाज की समस्या की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे कम्युनल की बात कर रहे हो. हमने बोला यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती, हम विकास की राजनीति करते हैं. जैसे हमने मेट्रो बनाया है, किसी जाति धर्म के लोग नहीं बैठते, सभी पूरा उत्तर प्रदेश के लोग बैठते हैं. हमने एक्सप्रेस बनाया तो सभी उत्तर प्रदेश के लोग चलते हैं. हॉस्पिटल बनाया तो सभी उत्तर प्रदेश के लोगों का इलाज होता है कोविड काल में. स्टेडियम बनाया तो सभी उत्तर प्रदेश के लोग खेलने जाते हैं. 1090 महिला सुरक्षा के लिए बनाया तो सभी महिलाओं के लिए. 100 डायल बनाया था जिसको आपने 112 कर दिया, 12 कर दिया, वो भी सब, वो पुलिसिंग सिस्टम सबके लिए है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं बनाया हमने. आपकी गलत ओपिनियन पोल्स भी, नहीं, ओपिनियन पोल्स भी किसी जाति विशेष के लिए नहीं है. ओपिनियन पोल्स भी किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, अनुराग भदौरिया. और इसमें रूल्स है 126/1/B ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, सेक्शन 126(1)B ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951. It allows me to do election opinion polls. आप यहाँ पे किसी पार्टी विशेष को बढ़ा, आप जो कह रहे हैं, आप एक मिनट आपकी का विषय है. तो ये आम आदमी पार्टी जो पंजाब में जो जिसको हमने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दिखाई है. 1 minute संजू, वेट अ मिनट. संजू, डोंट स्पीक ओवर मी नाउ. आई एम शोइंग टुडे. I'm showing Major Malhotra is on the program. 1 minute, Sanju, let me complete the sentence. Why do you intervene when I just speak two words? I said in Punjab, the Aam Aadmi Party is the single largest party. अब अनुराग भदौरिया बोलेंगे, मेजर मल्होत्रा, कि अब तरफदारी करें आम आदमी पार्टी के साथ. आप हर चीज में एजेंडा देखते हैं.
जब हमने कहा कि आपकी वोट संख्या 33 हो जाएगी, उसमें एजेंडा कहाँ थी? नहीं, गलत बात है। और सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको ये भी याद दिला दूं, एक मिनट, मार्च 2019 में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस वहां पे एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ ने एक प्ली थी कि ओपिनियन पोल्स बंद किए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वी कैन नॉट इंटरफियर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वी कैन नॉट इंटरफियर। ये मैंने नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। दादा मुझे ही बोलने दीजिए, थोड़ा 2 मिनट बोलने दीजिए। मैंने कहा 10 अप्रैल को जनता अपना ओपिनियन दे देगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी आउट हो जाएगी। मैं चैलेंज करता हूं। संजू वर्मा ओपिनियन बीजेपी आउट होगी, जनता ओपिनियन देगी, तब पता चलेगा कि संजू वर्मा रिस्पोंडिंग टू अनुराग भदौरिया लास्ट 3 मिनट्स ऑफ द डिबेट। ओपिनियन नहीं चलेगा। एसी कमरे में बैठ के पीआर एजेंसी के ओपिनियन पोल क्रिएट कर रही है, कहानी किसी खास पार्टी के लिए नहीं चलेगा। जनता का ओपिनियन पोल आएगा, रिजल्ट आएगा 10 मार्च को, तब पता चलेगा उत्तर प्रदेश में जनता का ओपिनियन क्या था। ओके, हरे कुर्ते वाले आपको पता चलेगा कि बीजेपी आओ, समाजवादी पार्टी क्या करेंगे। संजू वर्मा जी, अनुराग लेट अस स्पीक। अनुराग थैंक यू। अनुराग प्लीज वो सुन रही थी आपकी बात। अभी आप 2 मिनट चुप हो जाइए। संजू वर्मा विल रिस्पॉन्ड। थैंक यू वेरी मच। संजू वर्मा विल रिस्पॉन्ड। अनुराग प्लीज पुल बैक अनुराग, पुल बैक। संजू इज रिस्पॉन्डिंग। और अनुराग भदौरिया को उनकी भाषा में समझाना चाहती हूँ। एक कहावत है, यहाँ तहजीब भी बिकती है, यहाँ तहजीब भी बिकती है, यहाँ फरमान भी बिकते हैं, यहाँ फरमान भी बिकते हैं। तुम अपना दाम को बोलो, तुम अपना दाम को बोलो। यहाँ ईमान भी बिकता है, तुम अपना दाम को बोलो, यहाँ ईमान भी बिकता है। तुम्हारी पार्टी संजू अखिलेश यादव शिक्षा बदहाल और जनता ने मन बना दिया है। आपको अखिलेश के प्रहार 2 महीनों के अंदर वापिस जनता आपकी औकात दिखाएगी। लाल टोपी पर टाटा बाय किया जाएगा। संजू वर्मा जी, योगी आदित्यनाथ यूपी में आएंगे। अखिलेश के प्रहार वाले गुंडे ये मेरी भाषा है, बोल दो तो अच्छा लगेगा। बोल दीजिए इस बार यूपी में महंगाई के जोर बा, जनता लाचार बा, अखिलेश के प्रहार बा, भाजपा के हार बा, यही बा यूपी में। ये मेरी भाषा अगर समझ लीजिए तो अच्छी बात है। नहीं बोल पाए तो छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, रिपब्लिक टीवी उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि संजू वर्मा जी नहीं बोल पा रहे उत्तर प्रदेश के बारे में। बात करो उत्तर प्रदेश की भाषा, गुंडाई करो, फिर अनुराग भदौरिया गुंडाई करो, भाजपा की तो विदाई हो जाएगी, गुंडाई करो। तो विदाई में लाल टोपी वाले गुंडाई, दंगाई, अराजकता, उपद्रवता, इसी के लिए चिल्लाते रहो लाल टोपी लाल टोपी लाल टोपी। इतना डर लाल टोपी का। लाल टोपी तो ये क्रांतिकारी है जो किसानों को रोकने वालों के खिलाफ खड़े होते हैं। लाल टोपी वाले क्रांतिकारी हैं। हाथरस की बेटी के साथ अन्याय होता है तो लाठी खाने के लिए खड़े होते हैं। ये लाल टोपी वाले बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए लाठी खाते हैं। ये क्रांतिकारी लोग हैं। जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तो आके खड़े होते हैं। आप कोविड काल में किसी की मदद होती है तो Vikraman has not spoken so far. Vikraman has not spoken so far. I think Vikraman, I think the majority of the people in this country want to see an opinion poll. Do you want to see an opinion poll tomorrow, Vikraman? Do you want to see one, Vikraman? I want to see one. I'm going to present one tomorrow. Do you think anyone can block us? You'd be the first person watching when we put out our numbers tomorrow. Vikraman will be the first person watching, Animesh. No, it is going to be a totally biased outcome because we know pretty well how the media functions, and also we should respect the people's mandate. What is ours? Animesh, you can tell him about your professional background. Yeah. He's got every poll right. No, of course, based on our track record, we've got every poll right, and at least we are one of the few professionals who have skin in the game. There are so many leaders who say we win 300 plus seats, etc. But we have some skin in the game. Now, second point, in 2017 UP election, every poll was showing that BJP was not getting majority. But then SP did not have a problem.
In 2017 election also, no opinion poll had showed that BJP would get an absolute majority. It was either a tight contest or the SP was leading. But in that sense, so opinion polls influence voters is a wrong statement. They're facing anti-incumbents. And how many people did you really question? Well, you know, I'll tell you about sampling. No, 1 minute. Vikraman, what do you know about polls? What do you know about sampling? What do you know about this kind of statistical analysis? I know about elections. And I know about how these... No, you don't. You don't. No, you don't know anything. You don't know anything about it, Vikraman. You don't know anything about polls, Vikraman. I'm absolutely sure about that. I'm convinced you don't know anything about polls. And I know how the opinion polls No, you don't know anything about it. If you know... That is the real reason why SP chief has written First you they get... know pretty well what No, you don't know. You don't know. No, you're talking to a professional. You don't know. Anyway, we had a great fun. I don't know why my Republic opinion poll, ladies and gentlemen, can you tell me why has... Did not visit Noida. He was so scared. यहाँ पर आकर हरे कुर्ते डाले हमको Again Anurag has started off. Sanju started off with Anurag. Another 30 seconds. अखिलेश यादव को नोएडा जाने से डर लगता है. पहले बोलो अखिलेश यादव को नोएडा जाने के लिए. अरे आप ये बताइए उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल कब कम होगा? फर्क साफ है. तब डीजल पेट्रोल की कीमत कितनी थी, आज कितनी है? फर्क साफ है. Ladies and gentlemen, महिलाओं पे अत्याचार तब कितना था, अब कितना है? And ladies and gentlemen, कुछ भी हो अनुराग भदौरिया, संजू वर्मा, मुझे ये पता है कि कल कुछ भी हो, जब नंबर रिपब्लिक भारत पे और रिपब्लिक टीवी पे दिखाए जाएंगे, आप सब लोग देखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं that the only channel that gets the numbers right every time is Republic. Ladies and gentlemen, we're going to bring out the polls. Let's see which political party stops us. And it's an absolute pleasure bringing the news to you. I think it's going to be very exciting, very, very exciting as the elections come closer and closer. I love broadcasting at a time of elections. I can't wait to hit the ground myself. I hope I don't have to wait too long. And I shall see you before long, 9 o'clock tomorrow, sharp. In fact, maybe a minute early. Till then, good night and goodbye.